दोस्तों तुसीं रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे हो तो मैं शशम नागरा तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। इस वक्त हरियाणा के करनाल जिला के असंध इलाके दे विच खड़े हैं जिथे कि प्रशासन वालों बिजली की तार इत्थों निकलनी सी ते उहदे तहत जिहड़े इत्थे खड्डे पट्टे गए सीगे बड़े बड़े टावर लगाउण दे लई ते किसानां नूं उस दे मुआवजे दे नाल जिहड़ी संतुष्टि नहीं सी ते जिस नूं चलदे होए किसानां ने पहला तो प्रशासन नाल गलबात करन दी कोशिश की कि सानूं इस दे सही जिहड़ा मुआवजा वो मिलना चाहिए, पर गलबात नहीं बनी। तो हुण अज किसानां वल्लों इत्थों भारी गिनती दे विच इकट्ठे होकर इन्हां खड्डियां नूं भरन दी जिहड़ी मुहिम है वो छेड़ दी है। हालांकि गर्मी का इस वक्त पूरा 2-2:30 बजे हुए ने पर किसान अपनी मेहनत इत्थे दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। की कारण की मानते हो क्यों नहीं जिहड़ा प्रशासन के नाल तुहाडी जिहड़ी सैटलमेंट हुई? देखो जो ये बिजली के बड़े खंबे लगते हैं, टावर वाली लाइन लगती है, ये ਜਿਹੜੇ भी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਲੱਖ ਪਰ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਵਰ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦਾ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹ 17 ਟਾਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। देखिए मसला ये है कि जिस खेत में टावर लग जाते हैं, जिस खेत में लाइन बिछ गई तो उस खेत की कीमत लगभग ख़त्म हो जाती है। ये जो इलाका है संध का इलाका है, यहाँ पे कई करोड़ की 1 एकड़ ज़मीन है, और जिसमें टावर गड़ गया तो ना वहाँ पे ना तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ना ही कोई अपना घर बना सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और उस ज़मीन को ना आगे कोई अगर मान लो किसी 10, 20, 30 साल बाद जाके भी देखे तो उसको कोई ख़रीदार भी नहीं मिलता। तो इसीलिए जो भाई अभी साथी बता रहे थे जगदीप भाई कि कई केसेस आए हैं, जैसे झज्जर में आए हैं तो वहाँ पे 26 लाख तक का मुआवजा मिला है। तो मुआवजा किसानों को यहाँ पे किसानों की पूरी उनकी मांगें पूरी करी जानी चाहिए, और जो उनकी उम्मीदें हैं मुआवजे को लेके उनकी पूरी पूर्ति होनी चाहिए। अन्यथा आज हरियाणा के तमाम किसान संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जितने भी ये खंबे यहाँ पे खोदे गए हैं, जो खंबे के लिए जितनी भी ये 17 जगह खोदे गए हैं, तो वो आज सारे भरे जाएंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जब प्रशासन ने आपको विश्वास दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो पक्के मोर्चे वाली तो कोई बात नहीं है। वो जहाँ आने के बाद मैसेज मिला, ये सरकार खट्टर सरकार है, 40 गट्ठे भी खाती है, 40 जूत भी खाती है। जब हमारे साथियों की कमेटी बनी थी 5 साथियों की, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रशासन अधिकारी ने बातचीत करने की कोशिश नहीं करी। दुख की बात सबसे बड़ी ये है, ये प्रशासन के अधिकारी पब्लिक की आवाज़ को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन सब कुछ उल्टा है। ये लोग प्राइवेट कंपनी और बड़े ठेकेदारों की मिलीभगत के साथ किसानों का, आम पब्लिक का शोषण करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं और बड़े ये इतने बड़े काम करने पड़ते हैं, इतने बड़े एजिटेशन करने पड़ते हैं। और हम प्रशासन को कहना, पहले भी कहा, आज भी कहना चाहते हैं, अगर आप इनका पूरा बनता मुआवजा नहीं देंगे, क्योंकि सारी ज़िंदगी जितना एरिया इसके अंदर चला गया, या 2-3 फसलों का मुआवजा देने की बात करते हैं हम, 2 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी यहाँ पर फसल नहीं होगी,
जबकि दूसरी स्टेटों के अंदर ईयरली उन्होंने पे करने का जो प्रावधान किया है कि जितनी फसल है उसके हिसाब से हर साल देते हैं। अमरजीत भाई, मुझे ये बताओ कि हरियाणा में आपको सरकार से दिक्कत है या सरकार को आपसे दिक्कत है? चाहे पंचकूला में गन्ने के किसान हो तब भी आप हमें वहाँ पे मिलते हो, किसानों डीसी दफ्तर के बाहर या फिर धरना लगाए हुए, यहाँ पे भी क्या दिक्कत क्या है? यहाँ पे मसला क्या है किसानों से सरकार को? ये वैसे आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्यों, आप मीडिया वाले साथी हैं। ये सरकार का काम है परेशान करना लोगों को। इनकी जो पूरी उत्तरी भारत की जो ज़मीन है, खासकर हरियाणा पंजाब की, क्योंकि ये एशिया की वो सबसे कीमती जगह है जहाँ से पूरा आने वाली दुनिया को, पूरे यूरोप को, पूरे अरब कंट्रियों को यहाँ से एक अपना दुबई की तरह यहाँ से एक्सपोर्ट होना है, सब कुछ है। ये दुनिया का हब बनना है। इस जगह के ऊपर कारपोरेट की आंख है और यहाँ से किसानों को तबाह करने के लिए सरकारों ने कानून बनाए हैं। अभी हरियाणा के अंदर एक कानून बना दिया है लैंड एक्वायर बिल का, जिसमें किसान कुछ भी नहीं कर सकता। रात को लेटर आएगा और सुबह ज़मीन से बाहर होना पड़ेगा। ये सरकार कॉरपोरेट के हाथों बिकी हुई सरकार है, कॉरपोरेट के लिए कानून लेकर आती है। आज भी जो ये लाइन है, कहीं पर मिल कोई बड़ी कंपनी की फैक्ट्री लगनी है जिसमें एथेनॉल बनेगा, उसके लिए ये लाइन जा रही है। और किसानों की ज़मीन को उनसे पूछा भी नहीं जाता भी आपको कितने पैसे देना है, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं की जाती। उल्टा जबरन प्रशासन को खरीद कर पूरा प्रशासन या किसानों के खिलाफ उनके ऊपर लाठीचार्ज या धक्काशाही करती है। ये किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं सरकार से, सरकार जानबूझकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और जिसके लिए बार बार खामियाजा भुगतना पड़ा। इनको लगा कि किसान, प्रदेश का किसान अब आंदोलन से उब चुका है, लेकिन ये किसान संगठन भी सब इकट्ठे हैं और किसान की लड़ाई को ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सरकार को समझ लेना चाहिए, नहीं तो लड़ाई और भी लंबी चले। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ ਕਰਨਾਲ।